Good morning, student. This is Mrs. Richa Mishra, your English teacher, and today we are going to start Celebrity Chef in class 6th, right? Okay. So, what is celebrity? What do you mean by the word celebrity? Celebrity means some very famous personality in some area of your life. Okay, so it could be anyone. It could be an actor, actress, or chef, or a cricketer, or any other sports person. So there are lots of celebrities all around us. Even you can be one of the celebrity if you work hard in your life, right? To be a celebrity, you have to really work very, very hard. Okay. And what is chef? Chef मतलब जो खाना बनाते, जिन्होंने अपने करियर जो है एज अ खाना बनाने को अपना करियर के रूप में चुना है। तो आजकल बहुत सारे ऐसे करियर्स हैं जिस जो बहुत ही अलग अलग तरीके की चीजें वो कर रहे हैं। एंड इसमें से एक है शेफ। शेफ को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें वो खाना बनाना सीखते हैं। ठीक है। एंड लेट मी टेल यू, इट इज नॉट मियर अ किचन वर्क। केवल किचन वर्क खाना बनाना ही नहीं, देर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ साइंस इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर career. Okay, you have to know the science of ingredients which you are using. So there are so many things which you have to keep in mind while you are preparing a particular recipe, right? So this is what the chef is all about. Now, let us begin with the chapter. Sanjeev Kapoor is one of the most popular faces of Indian television. He is the only chef in the world who have his own channel. संजीव कपूर जो है, आप इसको इनको देख सकते हैं यूट्यूब चैनल्स पे भी, टीवी चैनल्स पे भी, और ये बहुत ही फेमस फेस है। ये पहले सेलिब्रिटी शेफ थे जो अपना चैनल ओन करते हैं। इनके चैनल पे बहुत अलग अलग तरीके की रेसिपीज आती रहती है। हिज रेसिपी बुक्स आर बेस्ट सेलर्स एंड आई हैव बैग्ड इंडियन एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। इनकी जो बुक्स हैं, इन्होंने जो बुक्स लिखी हैं, वो न केवल इंडियन अवार्ड्स जीते हैं उन्होंने, बल्कि इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं। His restaurants are considered the best not only in India but abroad as well. इनके जो रेस्टोरेंट्स हैं वो केवल इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली भी काफी रिनाउंड हैं, काफी फेमस हैं। ठीक है। His restaurants are considered the best not only in India but abroad as well. He also runs a business of world-class kitchen gadgets to empower people a cause close to his heart. केवल कुकिंग के बारे में ही नहीं बात करते हैं, कुकिंग से रिलेटेड किचन गैजेट्स यानी कुकिंग से रिलेटेड किचन में यूज होने वाले गैजेट्स को भी ये उसकी भी बिजनेस करते हैं और लोगों को एम्पावर करते हैं, लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से आप अच्छा खाना बना सकते हैं, डिलीशियस न्यूट्रिशियस फूड बना सकते हैं। व्हाट इज, अच्छा, नाउ दिस चैप्टर इज वन ऑफ द taken from one of the interview which Sanjeev Kapoor has given to some journalist, and these are the questions, the black bold letters which have written in your chapter is are the questions which has been asked by the journalist, and the answers are written in the normal font, right? So we are going to start with what Sanjeev Kapoor is saying about himself. What is your earliest memory of food? When did you develop an interest in cooking? आपके खाने की earliest memories क्या हैं? आपकी क्या इंटरेस्ट थे कुकिंग के बारे में? Mine is a family of foodies or food lovers and everybody loves cooking. सो इनकी जो पूरी फैमिली है उनको खाना बनाना और खाना खाना दोनों ही बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ही ज्यादा पसंद है। सो एज अ किड आई टू डिड बेसिक kitchen course like shelling peas or chopping vegetables followed by learning to make up a cup of tea. तो इन्होंने भी बेसिक काम शुरू में सीखा है, जैसे कि मटर छीलना, शेलिंग पीस इज मटर छीलना, ओके। चॉपिंग वेजिटेबल्स, यू ऑल नो, वेजिटेबल्स को चॉप करना, काटना, किसी भी चीज में आप वेजिटेबल साबित तो नहीं डाल देते हो, आपको उसको चॉप करना पड़ता है। और उसके बाद इन्होंने सबसे महान काम जो सीखा वो था अ कप ऑफ टी। आप लोग भी चाय बनाना तो आती होगी आई थिंक, है ना, सभी स्टूडेंट्स को। तो चाय बनाना सीखी इन्होंने।
ठीक है. But my clearest and most favorite memory is of making a perfectly round chapati. It was a great achievement and I was really thrilled. संजीव कपूर आगे कहते हैं कि लेकिन मेरी सबसे अच्छी जो मेमोरी है, जो मुझे हमेशा याद रहती है, वो है जब मैंने गोल चपाती बनाई थी. So you all are aware कि आपकी मम्मी कितनी जल्दी चपाती बना लेती है ना, जो आप खाने में इतने नखरे करते हो, वो चपाती को राउंड बनाना is a real great task. So try, if you are not agreeing with my this statement, perfectly round chapati is a task and your mother does it so perfectly for you guys and you don't want to eat it, right? Many of you do lots and lots of nakra to eat the chapatis. So ये जो perfectly round चपाती जिस दिन संजीव कपूर ने बनाई तो उनको बहुत ऐसा लगा उन्होंने बहुत बड़ा महान काम किया है और he was really thrilled. उनको बहुत मजा आया ये round चपाती बनाने में. How did your family react when you decided to take up cooking as a career? आपकी फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया, आपकी फैमिली ने क्या कहा जब आपने कुकिंग को करियर के रूप में स्वीकार किया? I have always liked to do something different. My family knows this and always supported my decisions. मैं हमेशा ही कुछ अलग करना चाहता था और ये मेरी फैमिली को पता भी है और वो मेरे इस डिसीजन को सपोर्ट भी करते हैं. So while everyone was studying medicine or engineering, I decided to become an architect. तो जब सब लोग डॉक्टर बनना चाहते थे या इंजीनियर बनना चाहते थे तो मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता था. आर्किटेक्ट जो मकानों के नक्शे बनाते हैं, कैसे क्या चीज कहाँ पर होगी, बिजली की फिटिंग कहाँ से जाएगी, पानी की फिटिंग कहाँ से जाएगी, ये सारी चीजें जो होती हैं वो आर्किटेक्ट का काम होता है. सो जब सब लोग मेडिसिन या इंजीनियरिंग करना चाह रहे थे तो मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता था. It was by chance that I applied for hotel management at the Institute of Hotel Management in New Delhi. और ये एक चांस की बात थी कि मैंने होटल मैनेजमेंट, द इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जो न्यू दिल्ली में है वहां पर अप्लाई कर दिया. A friend asked me to do it. It wasn't a planned decision, but definitely a good one. It changed my life. मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि तुम उसमें अप्लाई करो, मैंने कर दिया. ये एक प्लान डिसीजन नहीं था, प्लानिंग करके मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन ये एक ऐसा डिसीजन था, बहुत अच्छा डिसीजन था जिसने मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया. What was the difference between cooking at home and being a professional hotel management and catering course? घर पे खाना बनाना और प्रोफेशनली होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद खाना बनाने में क्या अंतर है? The course is all about preparing a person to be chef. The passion has to come from within. कोर्स जो है आपको शेफ बनाने के लिए तैयार करता है, लेकिन आपका पैशन, आपका शौक, आपका हुनर जो है वो अंदर से आता है. When you study professionally to be chef, you are taught everything systematically about ingredients, science, art, commerce, the past, the present, and future of cooking and the cuisine of different region. जब आप खाना बनाने के लिए शेफ के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको सब कुछ सिखाया जाता है, सिस्टमैटिकली सिखाया जाता है, सिस्टम से सिखाया जाता है. किस किस के बारे में सिखाया जाता है? इंग्रेडिएंट्स, जो खाना बनाने में यूज करने वाला सामान होता है उसके बारे में बताया जाता है, उसकी साइंस के, उसकी नेचर के बारे में बताया जाता है, उसकी आर्ट्स के बारे में बताया जाता है कि उसको कैसे परोसा जा सकता है, मतलब जब इसको पहले डाल देंगे तो क्या होगा, बाद में डालेंगे तो क्या होगा. कॉमर्स, वो कितना महंगा या कितना सस्ता है उसके बारे में बताया जाता है. पास्ट में उसको कैसे यूज करते थे, मतलब पहले के लोग भी तो इन्हीं चीजों को यूज करके बहुत अच्छा खाना बना देते, तो वो कैसे यूज करते थे, प्रेजेंट में लोग कैसे यूज कर रहे हैं और फ्यूचर में इसको कैसे यूज किया जा सकता है. अलग अलग एरिया का, अलग अलग रीजन का अलग अलग खाना होता है तो उसके बारे में बताया जाता है. Finally, it is about the application of this knowledge and skill to different aspects of cooking in a high pressure professional environment. और ये जितनी भी नॉलेज आपने अभी मेरे से सुनी या जितनी भी नॉलेज आपने अभी सुनी है उसको सबको इकट्ठा करके प्रोफेशनली हाई प्रेशर एरिया में, हाई प्रेशर जोन में हम कुकिंग करते हैं. कुकिंग एट होम इज अ मोर रिलैक्स्ड एक्टिविटी वेयर यू लर्न विद द टाइम एंड एक्सपीरियंस. और जो कुकिंग घर पे की जाती है वो बहुत ही रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर में की जाती है और उसको हम कर करके फिर ही सीखते हैं, यानी हम बार बार करते हैं चीजों को, बनाते हैं चीजों को और उसके बाद ही हम उसे सीख पाते हैं.
ठीक है. What is important for both, whether you are cooking at home or professionally, is to enjoy the process of cooking and feeding people good food. सबसे important जो चीज है कुकिंग में, चाहे आप घर पे बनाएं या होटल में बनाएं या रेस्टोरेंट में बनाएं या प्रोफेशनली बनाएं, कि आप कुकिंग को बनाते समय अपने आप को खूब एंजॉय करें, कुकिंग के दौरान अपने आप को एंजॉय करें और लोगों को अच्छा खाना परोसें. How did you begin your profession? What was your first kitchen experience? आपने अपना प्रोफेशन कैसे स्टार्ट किया और आपका पहला किचन का एक्सपीरियंस कैसा था? My journey into culinary world started with me working as a chef for ITDC Group in India. I was posted at Hotel Ashok, वाराणसी. तो मेरी जर्नी कुकिंग वर्ल्ड में स्टार्ट हुई ITDC ग्रुप में काम करने से. मैं होटल अशोक वाराणसी में पोस्टेड था. ठीक है. कलनरी वर्ल्ड, कुकिंग का वर्ल्ड, जहां पर कुकिंग से रिलेटेड काम किए जाते हैं, वो वर्ल्ड. डिड यू प्लान खाना खजाना, द फेमस टीवी शो? हाउ डिड इट हैपन? खाना खजाना जो टीवी शो था, आपने उसको प्लान किया था, वो कैसे आया, मतलब वो टीवी पे कैसे आया? ठीक है, मतलब ये आपको कैसे ये शो बनाने का ख्याल आया, वो जानना चाहता है जर्नलिस्ट. सो the answer which Sanjeev Kapoor gave is television happened during my tenure in the Centaur hotel in Mumbai. एक मुंबई होटल में सेंटोर जिसका नाम है, मैं वहां पर प्रोफेशनल शेफ था. तो ये खाना खजाना जो प्रोग्राम था वो उस टाइम मेरे लाइफ में आया. आई वॉज अप्रोच बाय अ रेडियो प्रोड्यूसर फ्रॉम फीजी और शो फॉर इंडियाज फर्स्ट केबल चैनल. तो फीजी का एक रेडियो प्रोड्यूसर था, उसने मुझे कांटेक्ट किया और वो चाहता था कि मैं उसके साथ मिलकर एक केबल चैनल के लिए एक शो बनाऊं. There were several bumps on this road, but eventually it led to a great success. पर इस रास्ते में हमें कई रुकावटें आई, लेकिन फाइनली हम सक्सेसफुल हुए और बहुत अच्छा शो बन के तैयार हुआ. For one, the cookery show was tentatively called श्रीमान बावर्ची, which I just couldn't relate to. सबसे पहले जो दिक्कत आई वो क्या आई, वो ये आई कि इस शो का नाम जो उन्होंने रखा वो श्रीमान बावर्ची रखना चाहते थे, जिसको मैं पसंद नहीं कर रहा था. I actually refused to come on board if the name wasn't changed. तो संजीव कपूर ने ओनर को बोल दिया था, शो ओनर को बोल दिया, प्रोड्यूसर को बोल दिया था, सॉरी, कि अगर आपने इसका नाम चेंज नहीं किया तो फिर मैं ये शो नहीं करूंगा. ठीक है. I actually refused to come on board if the name wasn't changed. अगर नाम चेंज नहीं होगा तो मैं काम इस शो में नहीं करूंगा. Besides this, the production house insisted on having a host standing next to me while I was cooking. और जो होस्ट था उसने ये भी बोला कि एक बंदा जो है मेरे बगल में खड़ा रहेगा जब मैं कुकिंग करूंगा, यानी एक होस्ट मेरे बगल में खड़ा रहेगा जब मैं कुकिंग करूंगा. This again I found to be a check on my cooking and I felt it stopped me from connecting with the audience. लेकिन मेरे को ये ऐसा लगा कि ऐसा लगा नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरी कुकिंग को चेक करता रहेगा पूरे टाइम और मैं ऑडियंस से बातचीत नहीं कर पाऊंगा, कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा प्रॉपर्ली. The producers, however, persisted and I suggested the name खाना खजाना, to which they agreed. प्रोड्यूसर्स जो थे उन्होंने इस बात को माना कि ओके, ना तो होस्ट खड़ा होना चाहिए और नाम भी बदलना चाहिए. मैंने इनको एक नाम सुझाया, वो नाम था खाना खजाना और वो इस नाम के लिए मान भी गए. खाना खजाना thus took birth in 1993 and went on to become the most successful cookery show on TV. तो खाना खजाना जो उसका बर्थडे हुआ, उसका मतलब फर्स्ट एपिसोड 1993 में बना और टेलीकास्ट हुआ और बहुत ही सक्सेसफुल टीवी शो कुकरी शो रहा. कुकरी शो मीन्स जिसमें कुकिंग सिखाई जाती है, तो कुकरी शो रहा टीवी पर. More than 500 million people in about 167 countries see it. 500 मिलियन लोगों ने इस शो को देखा 167 कंट्रीज में. It has run non-stop for more than 15 years. 15 सालों से non-stop ये शो टीवी पे चलता रहा. खाना खजाना gave me a large chunk of the recognition and love I enjoy today. खाना खजाना से मुझे बहुत अधिक रिकग्निशन मिला, मुझे बहुत बड़ी पहचान मिली और वो मैं पहचान को आज भी बहुत प्यार करता हूँ. It helped me to get into people's heart and brains and stay there.
इस प्रोग्राम ने मुझे लोगों के दिलों पे और दिमाग पे राज करना सिखा दिया. It was the first time that the concept of the celebrity chef or a chef cooking on the screen in India came to life. ये पहली बार था कि एक कुकिंग शो में एक सेलिब्रिटी शेफ यानी एक मशहूर शेफ जो था वो खुद कुकिंग कर रहा था. ठीक है, और पहली बार कुकिंग शो बना इंडिया में. ठीक है, सो इट विल ऑलवेज बी स्पेशल टू मी एंड क्लोज टू माय हार्ट. तो ये प्रोग्राम मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मेरे दिल के बहुत ही करीब है. व्हाट इज योर फेवरेट कमेंट फ्रॉम द व्यूअर्स? आपका कोई ऐसा कमेंट जो व्यूअर्स ने आपको दिया हो और आपको याद हो और आपका फेवरेट कमेंट हो. तो संजीव कपूर इस क्वेश्चन के आंसर में कह रहे हैं that they tried one of my recipes and it turned out great. कि उन्होंने मेरी एक रेसिपी को ट्राई किया और वो बहुत अच्छी बनी. तो ये बहुत बढ़िया कमेंट होता है एक प्रोफेशनल के लिए कि उसने कुछ बताया और आपने उसको वैसे ही बनाया और बहुत अच्छे से वो चीज बनी, लोगों ने उसको पसंद किया, आपके घर के लोगों ने उसको पसंद किया. What is your comfort food? Who makes it at home? आपका पसंदीदा खाना क्या है? कंफर्ट फूड वो खाना जो आपको पसंद हो, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, जो खा के आपको बहुत अच्छा लगता हो. Who makes it at home? कौन बनाता है उसको घर पे? It has to be राजमा चावल. संजीव कपूर answers this question कि my favorite food or my comfort food is राजमा चावल. So everyone is having a favorite food. You must also be having some of your favorite food, right? Just imagine what your favorite food is. Everybody in my house can make a decent rajma chawal, but nothing comes close to the way my mother makes it. हमारे घर में सभी लोग राजमा चावल बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन जितना अच्छा मेरी मम्मी बनाती है, मेरी मदर बनाती है, उसके तो आसपास कोई बना ही नहीं. मतलब मेरी मम्मी जैसा राजमा चावल कोई बना ही नहीं सकता, है ना. तो बिल्कुल सही बात है, जो मम्मी खाना बनाती है ना उनसे अच्छा तो कोई और बना ही नहीं सकता. ये बिल्कुल सही बात है ना. हालांकि आप लोग खाना खाने में नखरे तो बहुत करते हो, लेकिन मम्मी के हाथ का खाना जो होता है ना वो दुनिया का बेस्ट खाना होता है. एज दे से इन हिंदी, माँ के हाथ का खाना, फूड कुक्ड बाय योर मदर इज ऑलवेज द बेस्ट, इजंट इट? आगे कहते हैं संजीव कपूर कि माँ के हाथ का जो खाना होता है वो बेस्ट खाना होता है. हम सभी इस बात को मानते हैं. अपार्ट फ्रॉम इंडियन cuisine, which cuisine excites you the most and why? आपको इंडियन खाने के अलावा, इंडियन cuisine, इंडियन डिशेस के अलावा और कौन से खाने बहुत अच्छे लगते हैं और क्यों अच्छे लगते हैं? रीजनल फूड, नो मैटर विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आई एम इन, जो वहां का लोकल खाना होता है, भले ही मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ. देखो, ही इज अ सेलिब्रिटी शेफ, सो ही कीप्स ऑन ट्रैवलिंग. तो जब वो ट्रैवल करते हैं तो वो दुनिया के अलग अलग कोनों में जाते हैं, और जहाँ कहीं भी वो जाते हैं तो वहां कहीं पर भी उनको अलग अलग खाने की चीजें खाने को मिलती हैं, बनाने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं. तो संजीव कपूर कहते हैं कि जो रीजनल खाना होता है, जो लोकल खाना होता है, वो खाना मुझे बहुत ही पसंद आता है, भले ही मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ. As a part of my job, I travel a lot and have the good fortune to eat food from across the globe. मेरा जॉब ऐसा है, मेरा काम ऐसा है जिसमें मैं बहुत दुनिया में बहुत ज्यादा ट्रैवल करता हूँ, और जब मैं इतना ट्रैवल करता हूँ तो मैं अलग अलग खाना लोगों का देखता हूँ और मैं उनको खाता हूँ, सीखता भी हूँ. Where I go, I make sure I savor the local regional delicacies of the place. मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ मैं वहाँ का लोकल खाना खाना पसंद करता हूँ. I have had such a great experiences. It would be difficult to pick one among the gems that regional cuisines are. मेरे पास इतनी खूबसूरत अनुभव है, इतनी खूबसूरत एक्सपीरियंसेस हैं कि मैं उनमें से एक को चुनकर आपको नहीं बता सकता, क्योंकि रीजनल कुजीन्स जो है, रीजनल डिशेस जो है, वो किसी जेम से, जेम क्या होते हैं? जेम वो रत्न होते हैं जो जेवरातों में लगाए जाते हैं. आप भी देखोगे कि जो जैसे डायमंड इज अ जेम, right? So there are if your mother is wearing a ring and it is having some kind of a stone in it, that is what is known as gem.
because they are precious, they are very expensive, so they are known as gem. So जो रीजनल कुजीन्स हैं उसमें इतने सारे जेम्स हैं, मतलब इतने सारे, वो इतने अच्छे हैं कि उनमें से मैं एक उठा के आपको नहीं बता सकता. What do you feel about TV cooking contest, especially the ones for the children? आप टीवी कुकिंग कॉन्टेस्ट जो टीवी पे आते हैं, जो कॉम्पिटिशन्स आते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, और स्पेशली वो कॉन्टेस्ट जो बच्चों के लिए है. Today's are a powerhouse of talent and that talent needs to be nurtured. आजकल के जो बच्चे हैं वो टैलेंट का पावर हाउस है, यानी उनमें बहुत ज्यादा टैलेंट है, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है. सिर्फ उनको उस टैलेंट को पहचानना और उसको एक नई दिशा देने की हमें आवश्यकता होती है. While the competition bring out the competitive spirit in kids, we must keep in mind that they are still children. हालांकि कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स को बढ़ाते हैं, मतलब जो ये मुकाबले होते हैं उसमें आप एक दूसरे से कंपटीशन करते हो और ये अच्छी भी बात होती है, लेकिन फिर भी हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो केवल छोटे बच्चे हैं. कुकिंग कॉम्पिटिशन्स आर for kids must be designed to make sure that they have a good time and enjoy the process. कुकिंग कंपटीशन स्पेशली जो बच्चों के लिए डिजाइन किए जाते हैं उनमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसे डिजाइन किए जाएं जिसमें बच्चों को मजा आए कुछ भी बनाते समय, मतलब जब वो कुकिंग कर रहे हो तो उनको मजा आए, वो उसे केवल एज अ बर्डन नहीं ले, केवल एज अ टास्क नहीं ले, उसको उस प्रोसेस में मजा आए. ठीक है. So if you decide to participate in a cooking contest, give it your all, but make sure you have a great time. अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप किसी कुकिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो आप अपना बेस्ट दीजिए, यानी आप अपनी बेस्ट डिशेस बनाइए और खूब मजे कीजिए. लेकिन कॉन्टेस्ट अपनी जगह है, कंपटीशन अपनी जगह है, लेकिन आप जो खाना बना रहे हैं तो उस मजे को मत भूलिए. मतलब आपको मजे लेके पूरा काम करना है, उसको एज अ पनिशमेंट नहीं लेनी है. अगर आप किसी चीज को एज अ पनिशमेंट लोगे then you won't be able to enjoy that particular task. So always enjoy your work. So when you enjoy your work, then the everything's fall into its place, right? So what would you advise today's children about food and eating habit? आप आजकल के बच्चों को खाने के बारे में और उनकी ईटिंग हैबिट्स यानी खाने की आदतों के बारे में क्या राय देना चाहते हैं? Eat the rainbow. रेनबो को खाओ. Include colorful foods on your plate. It looks nice, tastes great, and adds plenty of nutrition. अब रेनबो को खाओ का मतलब ये नहीं है कि आपने रेनबो को बाकी खाना स्टार्ट कर देना है, मतलब अलग अलग तरह के कलरफुल फूड्स को अपनी प्लेट में खाओ. तो जैसे रेनबो में इतने सारे कलर्स होते हैं, तो आप रेड में क्या खा सकते हो, आजकल तो देखो कितने सारे कैरेट्स आ रहे हैं, आप कैरेट्स खा सकते हैं. व्हाइट में देयर इज रेडिश, यू कैन हैव रेडिश. And then green leafy vegetables which you don't like to eat but you should be eating it because it is good for your health, so you can eat greens also. Then fruits, for example, येलो फ्रूट्स में आप पपाया देख लीजिए, मैंगो देख लीजिए. देयर आर सो मेनी fruits, so there is yellow also in your plate, so your plate should be containing a colorful foods in it. It tastes good, looks nice, and it adds plenty of nutrition. खूब सारा न्यूट्रिशन मिलता है, आपकी बॉडी जो है वो ऐसे खाने को खा के स्वस्थ रहती है, हेल्दी रहती है. The sooner you develop a healthy eating habits in your life, the better. जितनी जल्दी आप अपनी लाइफ में अपनी खाने की आदतों को हेल्दी खाना खाना स्टार्ट कर देंगे, अपनी खाने की आदतों को सुधार लेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा. The best advice I can give to the parents is to ask them to lead by example. और मैं पेरेंट्स को ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप लोग हेल्दी खाने की आदत डालें, क्योंकि अगर पेरेंट्स हेल्दी खाना खाएंगे तो बच्चे उनको फॉलो करेंगे, उनका अनुसरण करेंगे, वो जो बताएंगे वैसा ही करेंगे. ठीक है. What would you tell children who want to take up hotel management or cooking as a career? आप उन बच्चों से क्या कहना चाहते हैं जो होटल मैनेजमेंट को या कुकिंग को करियर के रूप में अपने जीवन में सेलेक्ट करना चाहते हैं? Working in a professional kitchen is not easy but extremely satisfying if you love cooking. प्रोफेशनल किचन में काम करना आसान नहीं होता,
लेकिन बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है अगर आपको कुकिंग करने से प्यार है तो। अच्छा, अब क्यों नहीं प्रोफेशनल किचन में काम करना आसान होता? आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप देखते हैं आपके साथ में अगर 4 फैमिलीज और आई हैं, आप भी अपने मम्मी पापा के साथ पहुंचे हैं, तो चारों ने एक साथ ऑर्डर किया होगा, थोड़ा थोड़ा सा टाइम का गैप होगा, 1-2 मिनट का, 1-2 मिनट का। पर जो कुक होता है उसको तो कुछ 15-1 मिनट मिलते हैं उस कुकिंग आइटम्स को तैयार करने के लिए। अब वो कुकिंग आइटम को तैयार करता है, उसको ले आउट करता है, उसको डेकोरेट करता है और कोशिश करता है कि 15 to 20 मिनट्स में वो प्लेट जो है वो आपके पास पहुंच जाए। नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा, और ठंडा खाना खाना तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता। तो फिर क्या करना है कि इतने प्रेशर में अब जो शेफ होता है उसको आपकी फैमिली का भी खाना तैयार करना है, आपके साथ जो 3 और फैमिलीज आई थी उनका भी खाना तैयार करना है, तो ये बहुत हाई प्रेशर जॉब होता है। लेकिन अगर आपको अपनी कुकिंग से प्यार है तो आप इसको बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से कर लेते हैं। ठीक है। You will have a challenge thrown at you almost every single day. And the best way to handle that is with the hard work and a smile on your face. Follow your dream and believe in yourself. The world is your oyster. हमेशा जो भी रोज आप जब किचन में पैर रखेंगे प्रोफेशनली, तो आपके पास एक चैलेंज होगा, रोज एक नया चैलेंज आपकी तरफ आएगा, आपको उसको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन कैसे आप इसको हैंडल कर सकते हैं? बेस्ट वे टू हैंडल इट इज विद योर हार्ड वर्क। आपको मेहनत तो पूरी करनी पड़ेगी, और एक स्माइल के साथ आप काम कीजिए, उसको एज अ बर्डन मत लीजिए। ठीक है। अगर आप किसी भी चीज को एज अ बर्डन लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो दिस वाज, अपने सपनों को पूरा कीजिए, क्योंकि ये पूरा जो वर्ल्ड है वो आपके लिए वेट कर रहा है, आपके लिए एक प्लेग्राउंड की तरह है जहां पर आपको जाके अपना गेम खेलना है। मीन्स यू हैव टू believe in your dream, follow your dream and complete your dream in your only single life. Okay, so this was your chapter regarding the celebrity chef. And okay, if you are having any doubt regarding this chapter, you may ask me right now.